ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸਚ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਧ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਾਤ ਸਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰਾ, ਚਰਨ ਗਹੁ ਬਗਲ ਸੁਭ ਰਸਨਾ। ਦੀਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੋ ਜੁਗੀ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਯਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਸੋ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਾਤ ਸਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ
शांति दे सोमे गुरबाणी दे रचनाहार धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज शो पावन उपदेश की बख्शिश करते हैं। कोई जाना हर स्यों देवै जोरा। सिख मुख द्वारा बेनती है कि कोई अजिहा जन है ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਈ ਰਹੋ ਬਾਟਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੀ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। कबीर साहब जी कहते हैं कि रस्ते का रोड़ा बन जाए जिमें राह के रोड़े की कोई मेर नहीं होंगी जिहड़ा मर्जी चुक के झट पासे सुट दिंदा है। इस तरह का हरी दे जन का जीवन होना चाहिए है। पर फिर विचार के कहते हैं कबीर रोड़ा हुआ था क्या भया पंथी को दुख दे। ऐसा तेरा दास है जो धरनी में खे। कहते जे रोड़े की तरह जीवन बना के राहियां नूं दुख देने की तरह शराब दे के लोगों के कामों च रुकावट पाउंदा रहा तां भी हरी का जन शोभदा नहीं है। इसलिए धूड़ी वर्गा जीवन चाहिए है। फिर विचार के कहते कबीर खे हुई तो क्या भया जौड़ लग अंग हर जन ऐसा चाहिए ज्यों बाणी सरबंग। खे उड़ के अंगां नाल लगन की तरह लोगों के अंगां नाल लग के मोह करन लग पिया। एक घर वाली छड्डी ते 100 चेलियां बना लियां, 2 बच्चे छड्डे ते हज़ारां ही चेले चाप के उन्होंने मोह पा लिया। फिर कहते कि पानी वर्गा जीवन होना चाहिए है। ते पानी वर्गा जीवन भी कहते सही नहीं है। कबीर पानी हुआ था क्या भया सीरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। पानी का सुभाव है ठंड दे विच ठंडा गर्मियों च गर्म हो जाता है। इयों कभी क्रोधी हो गया कभी शांतमई अवस्था वाला है। फिर हरी का जन किस तरह का कहते वाहिगुरू वर्गा ही होना चाहिए है। जिमें कलगीधर महाराज ने सोदरसनी रहरा साहब के विच लिखिया हर हर जन जो एक है बेब विचार कश नाहे जल ते उपजत रंग ज्यो जल ही बिखै समाहे। नामे पातशाह ने श्लोकां दे विच बचन किया हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। ऐसे हरी दे जन असल दे विच गुरु साहब आप ने जिमें चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी ने, तीजे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी ने हरी दे जन किया है। हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास। सो जिन्होंने सतगुरां ने केवल निगाह पा के बड़े बड़े पापियों का उद्धार कर दिता है। सो ऐसी कृपा की कि उन्होंने चंगे इंसान भी बनाया लोगों के मददगार बना के ते प्रचारक भी बना दिता है। जिमें भूमिया चोर का जीवन ही सतगुरां ने पलट दिता सी। सो इस तरह असल दे विच तां हरी दे जन गुरु महाराज आप हैं। परमात्मा ने आप ही
ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪ ਉਪਦਰਵ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਰੱਬ ਆਪ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ, ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰ, ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ, ਅਵਿਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰ, ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹਨ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਤੱਕ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਨਕ ਬਾਬਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਨਾ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰਾ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਗਰਮ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੜਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਤਪਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਵਰਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਾਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰਤਨ ਲਿਆ। ਜਦ ਬਰਤਨ ਲੈਣ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਰਸ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੱਲਾ ਤੜਕਿਆ ਜਿਹਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਦਾ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਖਿਚੜੀ ਪਵਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭਿੜਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੇਟ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਖਿਚੜੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਰਮ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਉਹਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ। ਜਦ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਟੇਢਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਕਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭਰਮ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
तो किधरों ब्रह्मा का अवतार आ गया। इन्ने चिर नूं राजे जनक की असवारी नेड़े आ गई। जद राजे की निगाह उस पासे पई तो झगड़े का कारण पुछया। नौकरां ने कहा जी ये पिछे नहीं हटदा, कहंदा कि मैं राजे का भरम दूर करन आया है। तो राजे जनक ने कहा बड़ी चंगी गल है, मैं तो ऐसे महात्मा नूं लभ रहा सी, चलो सभा लाओ। अष्टावक्र नूं बेनती की, कहन लगे महापुरखो मैं सभा लाउंदा हाँ, आप जी भरी सभा दे विच आके मेरा भरम दूर करियो। कहंदे चल जिथे जाना चल। राज सभा लग गई। अष्टावक्र जान बुझ के कुछ देर ना आया। जिन्ने विद्वान सभा दे विच बैठे हुए सन, ये शरीर दे विच 8 वल पैंदे वेख के रिड़दा खुड़दा जू आया। वेख के हस पए। हसदियां नूं वेख के अष्टावक्र ने कहा हे राजन, ये चमियार तो कितों इकट्ठे कर ले। राजा कहने लगा महापुरखो ये चमियार नहीं, ये बड़े बड़े विद्वान हैं। तो अष्टावक्र ने कहा कि जिहड़ा चम की परख करे वो चमियार ही हुंदा है। इन्हां ने मेरे चम शरीर की परख की है कि शरीर में 8 वल पैंदे ने, ये किधरों राजे का भरम दूर करेगा। तुसीं दसो कि मेरी आत्मा दे विच ते मेरे ज्ञान विच तां कोई वल नहीं है। परखना परख लो। हुणे मैं तुहानूं दसांगा। राजे ने कहा कि मैनूं घोड़े की काठी की रकाब दे विच पैर पाउंदियां पाउंदियां परमेश्वर का ज्ञान बख्शो। अष्टावक्र ने कहा कि जब किसी नूं गुरु धारण करना होवे तां तन मन धन अर्पण करीदा है। राजे ने कहा चंगा, मैं तन मन धन आप जी नूं अर्पण किया। फिर राजा जब घोड़े ते चढ़न लगा तो अष्टावक्र ने रोक दिता अते कहा हे राजन, किस दे हुक्म दे नाल तू चढ़न लगा है। राजे ने कहा जी मेरा मन कहता है। अष्टावक्र ने कहा मन तो तू मैनू पहला ही दे चुका, इनू क्यों वरतदा है। धन भी तो मैनू दे चुका है, इनू क्यों वरतदा। तो घोड़ा धन विच आ गया जो तू सानू पहला ही अरब चुका। ये कह के नाल ही किरपा दृष्टि कर दी। किरपा दृष्टि नाल जद मुंडा फुरना रुकिया तो झाटी राजे नूं ज्ञान हो गया। अविद्या रूप नींद दूर हो गई, ज्ञान रूप जागृत अवस्था प्राप्त हो गई। अष्टावक्र ने फिर देव दृष्टि नाल ओदी सुपने दी भी सारी गल दस दी कि हे राजन सुन, अज तो 8 साल पहला तेनों सुपना आया सी। उहदे विच तू अपने आप नूं भिखारी अते कंगाल वेखिया सी। फिर जाके राज भाग का मालक वेखिया। हे राजन, ना ये राज भाग सच है ते ना ही वो सुपना सच है। जो सुपने दे विच वेखिया वो सब झूठ सी। जो राज भाग फौजा खजाने ये संसार वेखने ये भी सब मिथ्या है। मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, मिथ्या हमै ममता माया, मिथ्या राज जोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्र, मिथ्या रंग संग माया पीख हसदा, मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवै हर के चरण। भगत रविदास जी ने बिल्कुल इसे ही साखी की प्रौढ़ता करदिया होया अपने पावन शब्द दे विच सोठ राग की भगत बाणी में फरमान किया।
अब तो जाए वाहिगुरु। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पया भिखारी। एक राजा सोने के सिंघासन से बैठा बैठा दोपहरे सौ गया, उसकी झोंक लग गई तो झोंक लगन नींद के विच उहनूं सुपना आया जिहदे च उहने अपने आप को भिखारी थकिया। अछत राज बिशरत दुख पाया, राज भागदे हुंदियां उन्हें दुख पाया सुपने दे विच। सोगत पई हमारी, ये वाहिगुरु साडी इहो जी हालत होई पई है। समझ लो कि जिंदगी का सुपना आया होया है तो असी राजे, परमात्मा ने आत्मा आप दी अंश तो साडा वजूद होंद विच लिआंदा। जिवें समुंदर है, समुंदर दे विचों एक पानी का गिलास भर लो, इंज जिहड़ा जीव आत्मा है एक पानी का गिलास ते परमात्मा समुंदर की तरह है तो वह भी पानी, समुंदर वाला भी ते गिलास वाला भी पानी है। इंज असी अपने आप को अलपग मन्निया होया, वाहिगुरु तो वखरी मन्निया ते जिंदगी का सुपना जिहा मैं मेरी का आया होया कि मैं फलाना सिंह हाँ, सो मैं आ हाँ मैं आओ हाँ। इसलिए भगतां ने बाणी विच दर्ज किया है, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे। जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। सो राज भागदे हुंदियां भाव जीवात्मा नूं परमात्मा ने मनुखा शरीर दे के महाराजा बनाया है। खालसा मेरो रूप है खास, कलगीधर खुद शहनशाह ने, खालसा भी शहनशाह है। महाराज ने अपना बाणा दिता है, अपना रूह बख्शिया, केड़ा शेरां वाला, सोहना बड़ा दस्तारा, ताज की तरह, बादशाह की तरह सोहना बड़ा दस्तारे का ताज, सोहना बड़ा दाड़ा, केसां दा जूड़ा ते सोहना बड़ा बाणा, गात्रा, पंज ककार ते पर असी शेरां वाला बाणा ला के भेडां बकरियां की तरह सिर मुँह मनाई फिरदे हाँ। महाराज ने सानू राजे बनाया है ते पर असी भिखारियां की तरह, मंगतियां की तरह सो आम जे होके तुरे फिरदे हाँ, अपना भुले हुए हाँ। प्रतख भी अंतरीव तौर पर भी सो जीव आत्मा परमात्मा की अंश नूं पहचानदे नहीं। महाराज ने आख्या आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरै। अपना आप भुले हुए हाँ जिस करके दुखी हाँ। सो कहते नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। अक्षत राज बिशरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। ऐसी साड़ी हालत हुई पई है। इंज पाशा फरमाउंदे ने, कोई जाना अष्टा बकर वर्गा जन है, हर स्यों देवा जोरा। जिन्हें महाराजे जनक नूं ते वाहिगुरु नाल जोड़िया सी, उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी बनाया। इयों कोई जन है श्री गुरु नानक देव जी वर्गा, श्री गुरु अंगद देव जी वर्गा। जिमें श्री गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को जोड़िया, गुरु अंगद देव जी ने गां गुरु अमरदास जी को जोड़िया, श्री गुरु अमरदास जी ने श्री गुरु रामदास जी को जोड़िया। इस तरह का कोई जन है जिहड़ा सानू हरि परमेश्वर नाल जोड़ देवे। इस तरह महाराजे जनक नूं
ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭਨਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਬੇਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਊਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮਰਦੀ ਜੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮੇਟਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, 5-7-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੋਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। शिव जी महाराज सुनाई गए तोता ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। जब कथा का भोग पिया उन्हें वेख्या भी तो सुती पई है, ਹੁੰਗਾਰਾ कौन दिंदा रहा। ठहर जा, फड़िया त्रिशूल पिछे मारन दौड़िया। वो बेचारा अपनी जान बचाउण खातर सोचा मना ਇਹਦੇ ਤੋਂ मैं कित्थे लुक सकदा हाँ, ये मैनू मार देवेगा। वो ਬਿਆਸ ਲਿਖੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਉਬਾਸੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। जब मूँह अड्डिया होया सी ਉਹਦੇ ਉਦਰ 'ਚ प्रवेश कर गया। शिव जी भोलेनाथ चौंकड़ा मार के ਬਿਆਸ ਲਿਖੀ ਦੇ घर अगे धुआं ला के बैठ गया कि जद जन्म लवेगा तो तां मैनू त्रिशूल नाल मारांगा। वो बेचारी बड़ी औखी रही। 12 साल इन्हें जन्म ही ना लिया। आखिर उन्हें बेनतियां कीतियां कि हे रब सच्चिया कृपा कर मैनू सुखी कर। तो भगवान ने आख्या कहते हे सुखदेव सुख कहते ने तोते नूं, ਇਹਦਾ नाम तोते तो सुखदेव मुनि पिया है। तू जन्म नहीं लेंदा होया। कहन लगा जी वो बाहर शिव जी त्रिशूल लैके बैठा होया, उन्हें मैनूं मार कतना छड्डना नहीं है। कहंदे थोड़ा फिर तू मां नूं ही दुखी करी जाएगा। 12 साल हो गए, तू क्यों मां नूं दुख दे रहा है, चल बाहर निकल। कहंदा जी मेरा प्रबंध करो, मैनू मार देना उन्हें, इत्थे चंगा भला समाधि लगी है। वाहिगुरू का नाम जप रहा महाराज तुहाडे विच लीन हाँ। कहंदे चंगा मैं उहदा प्रबंध करदा। शिव जी नूं आके पुछण लगे, कहन लगे महाराज इत्थे क्यों बैठे हुए हो। एक ब्राह्मण का रूप धार लिया। कहंदे आ गलबात हुई है, एक तोते ने अमर कथा सुनी तो सुनी क्यों। वेखो साडे गुरु साहब ताइयों महान हैं, उन्होंने गुरु घर दे विच किसी नूं नहीं रोकिया। भावें कोई कथा सुने भावें कीर्तन सुने, किसी नूं कोई रुकावट नहीं है। महाराज जी ने खतरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को साझा।
सबना नूं सांझा उपदेश बख्शिश कीता है। ये गुरु महाराज जी दे परोपकार हैं। साध संगत जीओ, जद उन्हें आख्या भी इन्हें कथा सुन ली है तो मैं इनू मार दियांगा, तो मैं बैठा हाँ, वो जन्म नहीं ले रहा, जन्म लूगा मैं मार जाऊंगा। कहन लगे कि जिहड़ी कथा तुसीं उन्होंने सुनाई है उहदा नाम की है? कहंदे अमर कथा। कहंदे दसो उहदा फल की है? कहंदे सुनने वाला अमर हो जाता। फिर कहंदे जिहड़ी कथा सुन गई अमर हो गया, तुसीं उहनूं किवें मार सकोगे? छड्डो खैड़ा ते रब दा भजन करो, इथों तुरदे लगो। फिर उन्हें 12 साल बाद कहंदे धरना चुकिया, कटक तुरदा लग्या कि गल तां सही है। फिर आख्या कि नकम्या हुण तां बाहर आ जा। तां 12 साल बाद सुखदेव मुनि ने जन्म लिया। कहन लगा महाराज माया रोको, इस माया के प्रभाव के नाल मेरा वैराग टुट जाएगा, तो जिहड़ा सिमरन विच लिव लगी है, लिव छुड़की लगी तृष्णा, तृष्णा आके घेर लवेगी, लिव टुट जाएगी, माया का प्रबंध करो। कहंदे चंगा, मैं 1 मिनट लई माया रोकदा हाँ, जद तेरा जन्म होवेगा तो मैं माया नूं हुक्म दियांगा, रोक लवांगा, प्रभाव नहीं पाएगा। माया नूं महाराज ने हुक्म दे के रोक लिया। उस 1 मिनट या सकेंड विच जिन्हां जिन्हां दा जन्म होया वो जमदे ही ज्ञानवान होए ते वैरागवान होए। गोरखनाथ बारे भी जिक्र आउंदा है, रहो विचार। सुखदेव मुनि जमदिया सारी जंगल नूं तुर पिया। इहदे माँ प्यो इनू रोकण, कहंदे जाओ जाओ तुसीं मैनू रोको ना, मैं तुहाडा कुछ नहीं लगदा हाँ, मैनू बड़े जन्म हो गए तुरे फिरदियां, हुण नहीं मैं मोह करना घर दा, हुण तां मैं परमेश्वर की प्राप्ति करनी है। व्यास नूं कहण लगा मैनू उपदेश दिओ। उन्हें सोचिया कि मेरा मुंडा है ते घर का जोगी जोगड़ा हुंदा, मेरे को उपदेश ग्रहण नहीं करेगा। कहंदे जा महाराजे जनक दे कोल चला जा, वो तैनूं उपदेश देवेगा। सो भाई गुरदास साहब जी ने लिखिया, कहंदे 12 वरे गर्भास वस, जमदे ही सुख लई उदासी। 12 वरे माता के उदर दे विच रहन करके ते माया नूं महाराज ने रोकिया, ते जन्म लैंदियां सारी उदासीन बिरती नाल साधु बन के वो ज्ञान की प्राप्ति लई चल पिया। या कई इस पंक्ति का ये अर्थ करते हैं कि कोई भी बच्चा 12 साल अपने माता के उदर विच नहीं रह सकता। इसलिए इस पंक्ति के ये अर्थ ने भाई गुरदास जी के कहने का मतलब ये है कि सुखदेव मुनि ने 12 साल सत संगत रूपी माँ दे उदर दे विच बैठ के भजन किया, कथा कीर्तन किया, वाहिगुरु का नाम सुनिया, तो फिर संगत दे विच उहनूं उदासीन बिरती मिली, तो ज्ञानवान होया। ये अंतरी वर्थ हैं जे कोई ना मन्ने। पर जो कुछ पुराणों दे विच पुराणक साखियाँ जो सनातन मत दे विच ग्रंथों में लिखिया है, उहदी बाबत आपां विचार कर रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सुखदेव मुनि नूं व्यास ने महाराज जनक कोल भेज दिता कि मेरे प्यो के उपर श्रद्धा नहीं करेगा। जद सुखदेव मुनि गया, इन्हें जाके की वेखिया कि महाराजा जनक दीयां राणियां कोई सज्जे कोई खब्बे, कोई सराणे वाल, कोई पैरों वाल। ते दोपहर का टाइम है, एन सुख आसन वाले कमरे दे विच ये सरदखाने में आराम कर रहे हैं, तो राणियां दी चरण घुट रही ने। जिहड़ी सराणे वाल खड़ी है वो पखा चल रही है। इन्हें जाके मत्था टेक दिता
पर मन के विच ये शंका आया भी ये तो बंदा होर ही तरह का, ये मैनू साधु नूं की शिक्षा देगा, ये तो राणियां दे मोह दे विच खचित होया पिया है। मैं इन्ना वड्डा त्यागी वैरागी तपस्वी ते राणियां दे मोह वाला मैनू की उपदेश देवेगा। कोई गृहस्थी बंदा साधु नूं की शिक्षा दे सकता है। मैं तो बेहंगम हाँ। तो अंतरजामी महाराजा जनक ने इसका मान तोड़न वास्ते अपनी शक्ति के नाल अपने महलों नूं अग ला दी। ये खड़े खड़ोतियां जब ये सोचा सोच रहा सी, नौकरां ने आके दसिया कि महाराज तुहाडी महलों नूं अग लग गई है। पर महाराजा जनक ने सुनी अनसुनी कर दी। कुछ देर बाद नौकर फिर आए तो कहा जी हुण तां अग दर्शनी ड्योढ़ी तक आ गई है। जनक ने सुन के फिर अनसुनी कर दी। एक रस आनंद विच बैठा रहा। पर सुखदेव मुनि जी जब दूजा सुनिया आया दर्शनी ड्योढ़ी वाला, पहले स्नेह ते तां पछाणों झाकिया, गेट वाल वेखी गया। दूजे स्नेह ते उठ के तुरी पिया। वैसे ये असूल है, ये निजम है। किसी भी ऑफिसर कोल, किसी भी आप तो वड्डे कोल जाइए तो बच्चों को सिखाया जाता भी मे आई कम इन सर, भी मैनू अंदर आने की आग्या है। उस तो बाद गलबात करके फिर सत श्री अकाल बुला के आखीदा भी चंगा जी हुण खुशियां जी छुट्टी आ जी, मतलब जान लगिया भी फतेह बुलानी आग्या मंगनी तो आउन लगिया भी दस के आना। ये भी मूँह चुके जो मर्जी चले गए, जो मर्जी तुर आए, वेखण वो बंदा बुरा लगता। फिर किसी ब्रह्म ज्ञानी संत के दर्शन करन जाइए तो जाइए अपने मतलब नूं कोई अरदास कोई बेनती कोई मुश्किल लैके सानू डिकना भी पएगा। हुण अगला साडे लई वेला तां बैठा नहीं, कोई आराम कर रहा है, कोई प्रसाद छक रहा है, कुछ भी अगे वो अपने आप दे विच कोई भजन बंदगी कर रहा है। फिर आउन लगिया भी दस के आना पऊगा भी हाँ जी खुशियां बख्शो जी। ये प्राहुणचारी का नियम है। तो प्राहुणियां नूं लोग तोरन भी आउंदे ने, गेट तो बाहर छड्डण आउंदे ने, बस स्टैंड तक तोरन आउंदे ने। ये साडे समाज की भी रीति है, प्राहुणचारी का भी नियम है। अध्यात्मक पक्ष तो भी जिन्हें कुछ प्राप्त करना होवे उहदे वास्ते भी ये जरूरी है। सदेव सुखदेव मुनि पहला तो मूँह चुकिया तुर आया, किसी ने रोकिया भी नहीं, माड़ा मोटा पुछया तो उन्होंने भेज दिता। महाराज ने कहा भी आउण दिओ, झट ही दर्शन हो गए। दर्शनों की कीमत उन्होंने पता नहीं सीगा भी इसकी कीमत की है। अगला हुण अपने महलों च बैठा होया आराम कर रहा भी गलती तो तेरी है, माड़ा तो तू आ, तू आया किहड़े टाइम दे आ। कोई वह उपदेश देने का टाइम होवे सवेर शाम, फिर तू आ दोपहर का टाइम आराम करन दा। वो अपने आनंद के विच लीन है। फिर उत्ते शंका खड़ा कर रहा। फिर उठ के तुर चलिया, छुट्टी भी नहीं लई। जब उठ के तुरया तो महाराजा कहन लगा भी हाँ सादा दस कित्थे चलिया, तू अपने आप ही आया सीगा ते बिना पुछण तो ही उठ के तुर चलिया। तेनों काम की है, गल तो कोई कीती नहीं, चलिया कित्थे है, आया क्यों सीगा। तो सुखदेव कहन लगा कि ड्योढ़ी पास मेरे पऊए ते तुम्बी पई है कि जो साड़ी ना जाए, उन्होंने चुकन लई उठिया। हाँ क्योंकि नौकर तुहाडे दस रहे ने कि तुहाडे महलों नूं अग लग गई है तो अग दर्शन ड्योढ़ी तक पहुँच गई है। महाराजा कहने लगा वाह वाह भी तुहाडे साधां दे बड़े हार जाइए, मैनू तो तू गृहस्थी समझ रहा भी ये माया के मोह दे विच राणियां दे मोह दे विच फसिया होया, अपने आप को तो बड़ा बड़ा त्यागी मन रहा कि मैं बहुत बड़ा साध हाँ।
मेरा सब कुछ सड़ रहा, सड़ गया, मैं कोई परवाह नहीं की, पर तू एक टुटे जे पऊए ते टुटी जी तूंबी, जिन्नियां मर्जी तूंबियां 50 तू बना ला, पऊइयां दे कई जिन्ने मर्जी लै ला, एक तू साध होने के नाते भी एक पऊआ दे नाल ते तूंबी दे नाल जुड़िया पिया है। आया सी गुरु धारण वास्ते, गुर दीखिया लैण दा, तू अधिकारी नहीं, जा इथों निकल जा। क्यों कह के नौकरां नूं कहा भी इहनूं धक्के मार के बाहर कढ़ दिओ, इहो जिहे बंदे नूं अंदर ना आउण दिया करो। फिर सुखदेव मुनि नूं समझ आ गई भी माया दे विच तां सचमुच ही मैं फसिया होया, आया तां सी मैं गुरु धारण करन लई, पर मामूली नगूणियां चीज़ां दे विच ही मेरा मन लगा रहा। इन्हां दा किन्ना साजो समान सड़ गया, इन्हां कोई परवाह नहीं की, ते इन्हां नूं ही हुण मैं गुरु धारण करांगा। आ जिहड़े राधा स्वामी ने वैसे चाहिदा तां नहीं, ये नहीं भी मैं प्रौढ़ता कर रहा भी इस तरह करना चाहिए। वो गल चों गल चेती आ गई, जिहड़ा भी उन्होंने दीवान च जाए, मैं वैसे कभी गया नहीं हाँ, एवें झूठ बोला, सुनिया जरूर है भी भंडारा भंडूरा जो वो इकट्ठ करन, उन्हों का जोड़ा घर कहते कोई नहीं होंदा, जो अपना गंढ पोट लई जां जोड़े जाड़े ने ते लाउण भावें सही पर थल्ले लैके बैठ जाते हैं। ये समझते हैं भी बंदे का कथा सुनदे जे जुत्तियां जी ध्यान रहा कि मेरे वर्गे चुक के भी लै जाते हैं, जां गंढा पोटलियां जी ध्यान रहा कोई सुनेगा कि, इसलिए जुत्तियां अपने कोल ही रखते हैं। वैसे गुरु घर की मर्यादा उच्ची सोची है, मैं एक वैसे उदाहरण लई है। तो वो जिहड़ा पऊए ला के आया सी, ध्यान उहदा उत्थे ही रहा, सुनना उन्हें की सीगा, ते फिर सोचा भी हाँ गलती हुई, इन्हां दा इन्ना साजो समान सड़ गया, कोई परवाह नहीं की, ते मैं नगूणियां चीज़ां च लगा रहा, मैं हुण धारण करना, इन्हां ने गुरु धारण करना। इस तरह सोच के जिथे लंगर दियां जूठियां पत्तलां सुट्टियां जांदियां, अजकल वांग भांडियां दे विच लंगर नहीं सी वरताया जाता। पुराना टाइम सीगा, असीं भी पत्तलां दे विच खांदे रहे हैं। आ सत्तू वाली गली एक दमदमी टकसाल है, एक भाई मनी सिंह साहब की टकसाल है, उत्थे साल बाद भंडारा वरतना, तो मैनूं याद है उस भंडारे दे विच पत्तलों के वो प्रसाद पानी दिया करते सन। बर्तन तो होने आए ने, साढ़े महापुरखा ने साढ़े होंदियां थालियां शुरू कराइया कि संगत को थालियां दिया करो भाई, ये साढ़े प्राहुणे हैं। तो पहला तो या तो हत्थां दे आ जिहड़ा जग जुग लगता, जे भी हत्थां दे आपां खांदे, तो पत्तलां जिथे सुट्टियां जांदियां जूठियां, 12 साल कंध ना ला के उत्थे खड़ोता रहा, तो वाहिगुरू वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू राम राम जो भी कुछ उन्होंने आउंदा सी वो करदा रहा। सेवादार लंगर की सफाई करके जूठियां पत्तलां महाराजा जनक की आग्ञा नाल इहदे सिर च सुੱਟਦੇ, सारी जूठ इहदे सिर च पैंदी। 12 साल सिर ते जूठियां पत्तलां पैण तो नहीं डोलिया। गुरबाणी दे विच इहदा नाम लिखिया होया है। ये साखी आपां एवें नहीं सुनाई, बाणी विच इहदा नाम आया, इहदी उदाहरण आई है जनक दी भी, महाराजे दी ते सुखदेव मुनि दी भी। कानड़ा महला चौथा। जात न जात देख मत भरमो, सुख जनक पगी लग ध्यावै गो। जूठन जूठ पई सिर ऊपर, खिन मनुआ तिल ना डुलावै गो। जनक जनक बैठे सिंहासन, नौ मुनि धूर लै लावै गो। ये गुरु रामदास जी ने इन्हां दा जिक्र किया। सो महाराजा जनक ने फिर इनू बुलाया, बुला के एक तेल का थाल भर के इनू दिता। 12 साल बाद कहन लगा कि जे तेनों ज्ञान चाहिए, उपदेश चाहिए, तो इस थाल में सारे शहर च फेर के लिया, पर एक भी तुपका ये कंढियां तो बाहर डुलना नहीं चाहिए, फिर तेनों उपदेश दूँगा। उधर सारे शहर च थावां थावां के राग रंग शुरू करवा दिते।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਾ ਥਾਲ ਫੇਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਡੁੱਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਸਾਧਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਖਿਆ ਤੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਲਓ। 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਗ ਰੰਗ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇਲ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਸਾਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਤੇਲ ਹਲਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਇਸ ਡੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗਠੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੂਣ ਤੇਲ ਹਲਦੀ ਇਤਿਆਦਿ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਰੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ। ਝਾਟੀ ਉਹ ਗਠੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਪਾ ਦਾ ਵੱਟਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵੱਟਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ ਇਹ 2 ਸੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ 1 ਸੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਧ ਸੇਰ ਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ 1 ਪਾਈਆ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਇਹ ਪਾਈਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਰਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਖਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ ਪਾਈਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾ ਪਾ ਮੇੜ ਕੇ ਪਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਮਗਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ ਕਿ ਝਾਟੀ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਆਸਾਨ ਦੇਸਾ ਦੇ ਤਖਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨੇ ਹਾਲ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਦੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨ ਮੈਂ ਪਾਰੀ ਤਤ ਛਿਨ ਬਾਈ ਕਸ਼ ਚਿਰ ਘਾਲ ਨ ਸੇਵਕ ਮਾਈ। ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਝਾਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਇਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਹੋਈ ਦੇਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
तेल ते वट्टी पहला पई होवे, जे उन्होंने तीली ला दईए तो उस वेले प्रकाश हो जाता है। इस तरह ये साधन पूर्ण हो चुके सन, सिर्फ साडे मिलाप की ही लोड़ सी। इंज पातशाह फरमाउंदे ने, कोई जाना अरसों देवै जोरा। श्री गुरु नानक देव जी वर्गा जन है जिहड़ा डग्गी वाले व्यापारी की तरह, सो जिवें महाराज ने उस व्यापारी नूं जोड़िया, सानू भी वाहिगुरू नाल जोड़ देवे। जिहड़े अजकल दे साधु संत ने वो बोरियां लैके घरों घर तुरे फिरदे ने, पहला वंडदे ने खाली, फिर भर के चुकते ने। ते जिन्हां कोल बोरियां दा काम ना होवे वो पर्चियां कटदे ने दुकानां ते आके। इउं गराही करनों सारे ही शेर ने, आ भी दे दो वो भी दे दो, पर जे किसी ने कहो मैनूं रब ना मिला दिओ, वाहिगुरू वाहिगुरू। ये तो गुरु नानक साहब ही है जिन्हें बिना गराही तो बिना पैसे तो कोई लोभ नहीं कोई लालच नहीं। वेखो कितनी सुंदर बाणी महाराज सरवण करवा रहे ने। इस तरह कलगीधर जी ने एक सैदखाना में मुसलमान नूं जिहड़ा बीबी नसीरा बेगम का भरा सीगा सगा, उन्होंने जोड़िया, तो जोड़िया भी जंग दे विच। पीर बुद्धू शाह सढौरे का रहन वाला, दी घर वाली का नाम सी बीबी नसीरा बेगम, यदा भरा सीगा सैयद खान, जो औरंगजेब की 1.25 लाख फौज का जरनैल सी। जद महाराज ते चढ़ के आ रहा सी आनंदपुर नूं जांदा, ये अपनी भैन दे कोल रात रहा, तो उन्हें पूछा वीरा कित्थे जा रहा, क्या भी मैं कलगीधर नूं पकड़ने जा रहा। कहन लगी रब 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 वीरा वो तो रब हैं, उन्हां दी बड़ी भारी महिमा है। तो उन्हें सिफत की, ये श्रद्धालु बन गया। कहन लगा कि जे मैं सीधा जाके मत्था टेकिया तो मेरी बदनामी होवेगी कि एडा वड्डा जरनैल वेखो। तो महाराज वाकई पूर्ण संत हैं, रब का रूप ने, तो मैनू जंग दे विच दर्शन दे। इउं बादशाही हुक्म नाल 1.25 लाख फौज लैके श्री आनंदपुर साहब कलगीधर जी के नाल लड़न दे बहाने पहुंचिया। जो सतगुरु कलगीधर जी के दर्शन करने चाहता सी कि औरंगजेब मैनू नलैक ना आखे, तो दर्शन भी हो जाण, सिपाही भी निंदा ना करन। इउं जद ने भावना की तो सतगुरु कलगीधर खुदा दा रूप सर्व कला समर्थ अंतरजामी शस्त्रां बस्त्रां सैत घोड़े ते चढ़ के जंग के मैदान दे विच आ नितरे। घट घट की अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, अंतरजामी सतगुरां ने शस्त्रां दी सैत तैनूं दर्शन दे के आखिया वार कर जां साडा वार रोक, ते नाल ही किरपा भरी निगाह पा दी। कहन लगा महाराज मैनू वार करन जोगा आपने छड्डिया ही नहीं। उस वक्त इन्हें हथियार सुट के कलगीधर के चरणों से अपना शीश रख दिता। वेखो गुरु गोबिंद सिंह इहो जिहे गुरु होए ने जिन्हां जंग के मैदान दे विच किरपान दे नाल बंदे नहीं वड्डे, बंदियां दे हंकारी सुभा कट दिते। श्री गुरु नानक देव जी च ते गुरु गोबिंद सिंह च कोई फर्क नहीं। कई कहते ना आप गुरु नानक साहब दे सिख हाँ जी, आप तो महाराज नूं मनदे, गुरु नानक साहब नूं आपां नहीं गातरा पाउणा, आपां नहीं किरपान पाउणी, आपां नहीं अमृत छकना, महाराज गुरु गोबिंद सिंह दा वीर असीं होए ने। बिल्कुल गलत गल जी। जिहड़ा बंदा जिहड़ा सिख दोनों पातशाहियां च फर्क समझदा वो सिख नहीं है। जिवें गुरु नानक साहब ने कौडे राक्ष ने निगाह पा के ते उन्होंने ज्ञान दिता, मरदाने नूं छड़ाया, इंज इसे तरह ही जंग के मैदान दे विच भी शस्त्र चलाउण दी बजाए सैयद खान नूं किरपा भरी निगाह दे नाल ही श्रद्धालु बना लिया। जे चाहुंदे तो सब दुनिया सिख बना सकदे। भीमचंद की सी, औरंगजेब की सी, ये गुरु साहब की खेड सीगी। उन्हां तलवार दे रस्ते मुक्ति बख्शिश कीती है। जिन्हां नूं कट्टिया वड्डिया भी वो भी मुक्ति कीते ने, उन्हां दा भी भला कीता। तो इंज जद इन्हें महाराज के चरणों नूं शीश लाया, ये रोम रोम चो नाम की झरनाट छिड़ी, सारे पासे वाहिगुरू की जोत परिपूर्ण दिस पई। ज्ञान अवस्था नूं प्राप्त होके सारा धन धाम सरदारी पुत छड्ड के फकीर बन के जंगल नूं तुर गया। जिन्ना चिर जिंदगी रही उन्ना चिर जीवन मुक्ति का आनंद माणदा रहा।
ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਨਾਮ। ਚਾਰਨ ਗਾਹੋ ਬਕ ਸੁਭ ਰਸਨਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਫੜਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਬਾਣੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਦੀਜਹ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੂਰਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਹਾਉ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਤੇ ਸੋਚੋ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੀਜੋ, ਤੇ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੀਜ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਦੋ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਗਿਆਰੋ, ਹਰ ਸਿੰਚਾ ਸੁਦਾ ਸੰਜੋਰਾ। ਯਾ ਰਸ ਮਹ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਮਹਾ ਬਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰਾ। ਆਇਓ ਸਰਣ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਚਿਤ ਵਉ ਤੁਮਰੀ ਓਰਾ। ਅਪੈ ਪਾਦਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।